Hi friends, welcome back to my video. Today we are going to learn about the third part of the figure of speeches. Before in that two videos we have seen the figure of speech, what is the importance and what is the use of the figure of speeches. Near about 14 figure of speech we have seen in previous two videos. This is the third video and I'm heartily welcome to all of you in this video. I hope you are learning everywhere very well and you are understanding each and every part properly. I hope so. So our 15th number figure of speech is there. Most important is irony, which is the daily routine. We are using it as we use the languages. What is the irony and what is the use of irony? Let's see, it is there. So friends, the way of speaking that shows you are joking or that you mean to opposite of that you say. Regularly we use this to make the comment on the taunt on the someone. तो इसका जो इस्तेमाल है that use we are using specially as a joke. We are using in the real daily routine in the real life and as a joking, as we are showing that it is a joke for someone, but this is a real comment on somebody one. Always it is. So what the example is there, we can understand. See there, what is it is telling? It is showing that it is a speaking of like a joke, but in reality it is opposite words. Okay, you are telling something different one and having the different meaning. If you want to taunt on particular one person, that you are using the special words like this. Actually the words is something different, but you are in a funny language you are saying some words, some sentences to that particular sentence, a particular type. Okay, for example, the first is there. See, the first example is what? The fire station burned down. Actually the fire station burned down, this is a completely both opposite fire stations, and this is burning down. How it is possible? So that one opposite ideas are used there. Especially this is using for that person who has lost himself. Okay, fire station means who is the person who has make a lot of angry. So that time we are saying that, see, that fire station is burning himself, he is making the loss of himself. The second is their sentence, the marriage counselor filed for the divorce. The marriage counselor, who is a marriage counselor and he has filed the divorce, he has complained the case for the divorce, he noted claim for the divorce from his wife or the husband, both of somebody can be. So it is possible. Yes, the marriage counselor who is maintaining the marital life of others, who he want the divorce from his life partner. The second one is a police station gets robbed. That's again miracle. Police station is get robbed. That we can see that bikes are robbed, the property is robbed, money, gold, something. At the even the grocery shop also can be robbed, but police station is robbed. When what the police were doing? That means that nobody was into the police station. Okay, the police station was completely empty. The police were flied away somewhere and nobody is taking care properly of that particular place. Post on the Facebook complaining how useless Facebook is. फेसबुक में ही कुछ लोग होते हैं ऐसे बहुत सारे, जैसे व्हाट्सएप पे ही कुछ लोग लिखते हैं कि व्हाट्सएप इज़ वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड व्हाट्सएप इज़ लाइक दिस, व्हाट्सएप इज़ दिस, फेसबुक इज़ लाइक दिस, मोबाइल यूज़ वेरी यूजलेस थिंग. और वो लिखते कहाँ पे? मोबाइल में ही लिखते हैं. मोबाइल में मैसेज करते हैं, सब लोगों को दिन भर मैसेज करते हैं कि मोबाइल यूजलेस थिंग है, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सो व्हाट इज़ दिस? द पर्सन हु इज़ टेलिंग एवरीथिंग, एवरीवन दैट रीड द बुक्स प्रॉपरली एंड ही हैज़ नेवर रेड द सिंगल बुक. दैट इज़ आयरनी. अंडरस्टैंड? जब हम लोगों को कहते हैं कि यार तू काम धंधा कर, भाई कुछ काम धंधा कर, यू डू समथिंग वर्क एंड यू आर नॉट डूइंग द सेम, यू आर नॉट डूइंग एनी सिंगल वर्क. दैट इज़ द आयरनी. The last one sentence, the pilot has fear of height. A pilot, the person who is driving the aeroplane, he has a fear of height. Opposite दोनों आइडिया. पायलट वो पर्सन होता है जो कोई भी सिचुएशन में एरोप्लेन को हैंडल कर सकता है. कोई भी सिचुएशन में वो एरोप्लेन को ज़मीन पे उतार सकता है या फिर कुछ किसी हाइट पर ले जा सकता है. लेकिन अगर वो हाइट से ही डरता होगा तो हाउ कैन पॉसिबल दैट ही ड्राइव द एरोप्लेन? दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया टू बी अ पायलट. Okay, the second number, next number, I hope you understand this one very well.
लाइटोट, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। उसका हम पहले देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। द यूज़ ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू एम्फासाइज अ पॉजिटिव मीनिंग फॉर दैट अ नॉट इनकंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी मीन्स वॉट द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी। इसका जो मीनिंग होता है एक्चुअली जो नेगेटिव होता है, बट एक्चुअली इट वांट टू सी द पॉजिटिव मीनिंग वन। उसका मीनिंग पॉजिटिव होता है और सेंटेंस नेगेटिव होता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपके सामने आएंगे कि वॉट इट वॉजंट अ टेरिबल ट्रिप, इट वॉजंट अ टेरिबल ट्रिप मीन्स इट वॉज अ सेफ ट्रिप, इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रिप। शी वॉज अनकाइंड, शी वॉज अनकाइंड मीन्स शी इज़ अ काइंड। नेगेटिव आंसर है, बट दिस इज शोइंग द पॉजिटिव attitude. They aren't unhappy with the presentation. They aren't unhappy means they are happy with the presentation. Not too shabby means to be shabby. The two concepts are not unlike each other. दो कॉन्सेप्ट एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है। मीन्स वॉट, बोथ आर द सेम, बोथ आर द इक्वालिटी। शी इज़ नो स्प्रिंग चिकन, she has no spring chicken means she has a spring chicken. Okay, ये light-out means something different, something is showing the similarities between the sentences with a negative response, negative sentence with a positive response. जैसे हम पढ़ते तो it is showing negativeness, but in fact it is a positive sentence. Okay, meaning is a positive but sentence is negative. Remember this one. 17 number is a metonymy. Metonymy is what? It is figure of speech that replace the name of the thing with the name of something else with each it is closely associated. Okay, remember this one. Metonymy is a figure of speech that replace the name of the thing which the name of something is else which is closely associated. Metonymy ऐसा होता है जहाँ पे जो वर्ड है जिससे वो रिलेटेड है, उस रिलेटेड वर्ड्स के साथ दूसरी एक चीज़ का नाम लिखा जाता है जो एक्चुअली वहाँ पे नहीं होता है। अंडरस्टैंड? वी कैन come across the example of metonymy both the literary and the everyday life. metonymy जो है हमारे दिन भर की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सारे फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमारे डेली रूटीन में यूज़ होने वाले होते हैं। वी आर यूजिंग पर्टिकुलरली एनी टाइम। ओके, सो व्हाट, England decide to keep a check on immigration. England means what? The government of England. Okay, India decided to check out. India decided to apply this rule. Means what? Indian government has applied the rule. जो पर्टिकुलर वर्ड है वो वर्ड किसी दूसरे वर्ड के लिए होता है। एक्चुअली वो वर्ड का मीनिंग वहाँ पे नहीं होता है। मीनिंग हमें खुद एक हिडन मीनिंग होता है। दैट हिडन मीनिंग वी हैव टू फाइंड आउट। अंडरस्टैंड? तो लास्ट यहाँ पे जो है the England is for what? England government decided this one. First example is given there. A pen is mightier than the sword. अब यहाँ पे pen and sword both are the different words, but pen means what? It is a book. Pen means a book, writing, poetry, drama, anything can be there, means a word. And sword means what? Fight, yuddha, a battle. This is a word. Sword से पेन माइटियर होता है। मीन्स वॉट? द वर्ड्स आर बेटर दैन द फाइट, बेटर दैन द क्वारल, बेटर दैन द बैटल। ओके, पेन प्रीफर टू द रिटन वर्ड्स एंड स्वॉर्ड इज मिलिट्री फोर्स। युद्ध करने से अच्छा है कुछ बुक्स पढ़ी जाए। सेकेंड नंबर इज देयर, द ओवल ऑफिस वॉज बिजी इन वर्क. Now the Oval Office is here for what? It is the Oval Office is that stand people who work in the offices. Oval Office means the people, those are working in the offices. That office is completely busy in this work. Okay, school was started. School was started means that is again school was started means teaching started. The teaching word is behind the school. The last sentence is there. Let me give you a hand. अब हैंड का मतलब होता है कि हेल्प. ओके, किसी ने मुझे हाथ नहीं दिया. किसी ने हाथ नहीं दिया मीन्स व्हाट? हेल्प नहीं दी. That is the metonymy, where the word is something different and used for the particular one concept. Both are
those are associate, the word is associate with that particular action. Okay, 18 number is there. Oxymoron. Oxymoron figure of speech क्या होता है? This is the phrase that combine two words that seem to be opposite of each other and such as defining silence. Okay, both are the oxymoron में दो opposite words होते हैं, दो opposite ideas होती है, which defends to each other, defends to silence. Okay, एक दूसरे को वो सर्व करने की कोशिश करते हैं. दे आर अपोजिट आइडियाज़ आर यूज इन द सिंगल वर्ड. अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं द 70s वॉज द ईरा ऑफ फ्री लव. 70s वॉज द ईरा ऑफ फ्री लव. यहाँ पे दोनों अपोजिट वर्ड्स है, फ्री एंड लव. लव इज़ अ बाउंडेड कॉन्सेप्ट. लव कैन नॉट बी फ्री. फ्री इज समथिंग डिफरेंट विच इज़ अनबाउंड. Okay, love is what when two person comes together and they started to express their feelings for each other. But free is for everyone. तो love में तो everyone हो नहीं सकता. Second example is there. I will ask the professor for his unbiased opinion. Opinion जो कभी unbiased नहीं हो सकता. Unbiased opinion means what? Something unbiased means unbiased is different and opinion is different. But two opposite words टुगेदर, लेकिन अनबायस ओपिनियन. अब अगर ओपिनियन होगा तो समथिंग इज ही हैज़ समथिंग वन साइड. कोई भी इंसान अगर अपना ओपिनियन देता है तो ही ऑलवेज ऑन द वन साइड. ओके, दोनों में से एक साइड तो उसे चुननी पड़ती है. देयरफॉर अनबायस ओपिनियन बिल्कुल होता नहीं है. बट स्टिल दे आस्क टू द प्रोफेसर फॉर हिज अनबायस ओपिनियन. द सेकेंड वन इज द कॉन्स्टेंट वेरिएबल. कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल दोनों अपोजिट आइडिया. कॉन्स्टेंट मीन्स विच कैन नॉट बी मूव एंड वेरिएबल विच चेंजेस ऑन एनी मोमेंट. वेरिएबल मीन्स चेंजिंग, चल. जो चल होता है, जो चल बदलता रहता है हमेशा. इज द कॉन्स्टेंट वेरिएबल इज़ द वन दैट डज नॉट चेंज. कॉन्स्टेंट वेरिएबल ये वो होता है कि जो चेंज नहीं होता. स्पेशली द वेरिएबल्स वी आर यूजिंग इन द रिसर्च स्टडी. ओके, रिसर्च स्टडी में हम जैसे वेरिएबल्स लर्न करते हैं. हाइपोथेसिस जब होता है तो टू वेरिएबल्स होते हैं. वन कांस्टेंट वेरिएबल होता है. स्पेशली इन क्लोज स्टडी में ये होता है. साइंटिफिक स्टडी, एक्सपेरिमेंटल में ये होता है कि एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है, एक दूसरा एक वेरिएबल होता है. रेगुलर इरेगुलर ऐसे वेरिएबल्स होते हैं. तो बोथ आर देयर. तो दैट इज कांस्टेंट वेरिएबल इज व्हाट विच डज नॉट चेंज एनी टाइम, विच इज़ कम्प्लीटली देयर. जब आप PhD करते हो तो आपको ये एक वर्ड वहाँ यूज़ ज़रूर होता है कि कांस्टेंट है कि स्ट्रैटिफाइड है. कुछ एक वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स के टाइप्स होते हैं. दैट वन इज़ देयर. फोर्थ नंबर, द सरमन लास्टेड फॉर अ एंडलेस आवर. अगेन सरमन इज़ प्रवचन. कोई महागुरु पंडित जो प्रवचन देते वो प्रवचन. तो प्रवचन जो है लास्टेड फॉर एन एंडलेस आवर. एंडलेस विच इज़ एंडलेस मतलब जो ख़त्म कभी नहीं होने वाला, और जो ख़त्म ही होने वाला है. 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे. लेकिन द अर्थ इज़ कंप्लीट है. अर्थ इज़ लिमिटेड टाइम. 60 मिनट टाइम इज़ अर्थ एंड विच इज़ कंप्लीट इन 60 मिनट ओनली. ओके, दैट इज़ 60 मिनट्स वर अर्थ एंड एंडलेस. वो एंडलेस कभी नहीं हो सकता, एंड होने ही वाला है. पहले मिनट से स्टार्ट होता है तो लास्ट 60 मिनट पर वो ख़त्म हो जाता है. देयरफॉर एंडलेस अर्थ इज़ कम्प्लीटली opposite both ideas. Tragic comedy. We laugh and cry through the tragic comedy. Tragic and comedy. Tragic is reference to the tragedy, which is the sorrowful story of the particular hero. Sorrowful story of the hero. And comedy, which is the laughable moments and good moments of the life, which is full of comedy. The tragic comedy is very difficult to say that. But still the both ideas are come together and we have the tragic comedy one particular part. तो दोनों दिखाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि रोते भी हैं और हंसते भी हैं. laugh and cried. So in these words we have the both opposite ideas and used together to show the something third one idea. Okay, free love, unbiased opinion, constant variable, endless और tragic comedy. ऐसे बहुत सारे वर्ड हमारे लाइफ में आते हैं. ओके, वो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो 19 नंबर, ये सारे एग्जांपल्स आपको बुक्स में और पोइट्रीज में मिल सकते हैं. वो आप ज़रूर देखिए एक बार, उनको सबको समझिए.
The 19th number is the synecdoche. Synecdoche is very simplest one. We can very easily understand it one. इसमें होता है कि कोई वर्ड जो होता है वो पर्टिकुलर एक वर्ड, छोटा सा वर्ड जो होता है पार्ट होता है, दैट पार्ट इज सजेस्ट टू द होल. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका डेफिनेशन समझेंगे पहले. द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा एज इन फॉलोइंग आइडियाज. अ सिंगल पार्ट इज इंडिकेट फॉर द कंप्लीट नोशन. एक छोटा सा पार्ट होता है, तो छोटा सा पार्ट पूरी बड़ी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल 10 हैंड्स वर्कड डे एंड नाइट. 10 हैंड्स ये छोटा सा पार्ट है, वो तो ह्यूमन बॉडी. बट 10 हैंड्स मीन्स व्हाट? 10 हैंड्स मीन्स सिंपली इंडिकेट द 10 पर्सन, 10 पीपल. ओके, द सिंपल थिंग अगेन आई एम टेलिंग, द इंडियन क्रिकेट टीम जिससे हम मैच की बात करते हैं, इंडिया वोन द मैच. इंडिया इज़ सिंपल वन. इंडिया वोन द मैच मीन्स द होल इंडिया इज़ नॉट प्लेड देयर. Okay, 11 players only playing the match and India won the match, but this Indian team has represented complete Indian culture, 130 crore people together. ठीक है. The fourth sentence we can use there, boots on the ground. Boots on the ground means उस धरती पे boots on the ground, on that place, on that particular place there was a boots. That boots refers to the soldiers. Okay, new wheels. I have the new wheels means new car. I have new car. Wheels represent to the car. Ask for her hands. Ask for her hand. Helping for the marrying for the marrying to the woman. जैसे कोई हीरो हमें देखता है, मोस्ट ऑफ द मूवीज वी हैव सीन दिस वन सेंटेंस दैट हीरो इज आस्किंग फॉर हर फादर, हीरोइन्स फादर, दैट आई वांट योर सिस्टर, आई वांट योर डॉटर्स हैंड. मीन्स फॉर आई वॉन्ट टू मैरी विथ योर डॉटर. आपकी लड़की का हाथ चाहिए मीन्स वॉट? द मैरिज वी आर यूजिंग फॉर दिस वन. सूट कैन रेफर टू द बिजनेस पीपल. सूट इज मीन्स वॉट? दैट सूट वन इज showing the indicate that clearly the business people. Fifth one, the plastic is I had the plastic money is referred to what? It is a credit card. Plastic money मतलब पैसे प्लास्टिक के लेकर नहीं घूम रहे, but this represent the credit cards. Synecdoche means simply ध्यान में रखिए कि कोई एक छोटा पार्ट which represent a complete full part. ओके, छोटा पार्ट पूरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, पूरी एक बड़े पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, छोटे से पार्ट को. ओके, लास्ट नंबर वन इज़ देयर पन, विच इज़ वेरी वन फैमिलियर टू यू. आपने बहुत बार उसे सुना भी होगा, बहुत बार यूज़ भी किया होगा. पन इज़ वॉट? सिंपली द अम्यूजिंग यूज़ ऑफ वर्ड दैट कैन बी टू मीनिंग और डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड द सेम. इसमें दो ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं कि दो अलग अलग वर्ड हैं, बट सिंगल वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन मीनिंग जो है बिल्कुल दोनों का अलग अलग है. ओके, पन वो होता है कि जहाँ पे शब्द का श्लेष होता है. श्लेष जैसे हिंदी में कहा जाता है, श्लेष मतलब मीनिंग, एक ही वर्ड के दो मीनिंग वहाँ पे होते हैं, एक ही वर्ड यूज़ होता है, वर्ड इज सेम वर्ड, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 times इट इज़ यूज, बट बोथ टाइम द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट वन. ओके, फॉर एग्जाम्पल, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट्स फ्लाइज लाइक अ बनाना. टाइम फ्लाइज लाइक अ एरो, यहाँ पे फ्लाइज का जो मीनिंग है वो समथिंग डिफरेंट है. ओके, टाइम फ्लाइज लाइक एरो मीन्स वो वक्त जो है वो बाण की तरह निकल जाता है, यहाँ पे निकल जाता है, यहाँ पे वो है. एंड फ्रूट्स फ्लाइज लाइक अ बनाना, फ्रूट जो है बनाना की तरह फ्लाइज हो जाते हैं, उड़ते मीन्स यहाँ पे फ्लाइज का मतलब यहाँ पे उड़ना नहीं होता है. दिस इज मीन्स अ डैमेज, जल्दी डैमेज हो जाते हैं. ओके, द सेकेंड वन इज़ देयर, हैंगिंग इज़ too good for a man who makes a pun, he should be drawn and quoted. अब यहाँ पे दोनों मीनिंग जो है वो अलग अलग है. हैंगिंग इज़ टू गुड फॉर द मैन हु मेक्स द पन. एक आदमी जो होता है उसके लिए उसे लटका देना ही अच्छा होता है. हैंगिंग मीन्स व्हाट? जो पन क्रिएट करता है, जो आदमी मजाकी आदमी होता है, वो लोगों को हंसाता रहता है. हैंगिंग का मतलब यहाँ पे लटका के मार देना नहीं, सुसाइड करना नहीं. दैट मीन्स व्हाट? टू बी एंगेज द पीपल. ओके,
हैंगिंग इज़ गुड फॉर मैन, वो उसको एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ एंगेज होना बहुत अच्छा होता है। दैट पर्सन ही शुड बी ड्रॉन आर कोटेड, वो जो होता है तो वो ड्रॉन यहाँ मतलब डूबना नहीं होता है, ड्रॉन का मतलब यहाँ पे लिखना होता है। ही टू बी ड्रॉन एंड देन कोटेड, वो लिखता है। ड्रॉन मीन्स वो पुराना टाइम है जहाँ पे इंक जो होती थी, इंक मीन्स वो ऐसे डुबा के लिखना पड़ता था, इंक पेन होती थी। नाउ दैट इज़ वेयर फाउंड वी हैव द बॉल पेन्स, बट दैट टाइम इट वाज इंक पेन्स। तो वो इस तरीके से बोलने का वो ट्रायल है कि दैट पेन शुड बी ड्रॉन एंड कोटेड। वो जो होते हैं लोग, उनको लिखना ज़रूरी होता है। दे हैव टू बी राइट। डेनियल एंड जस्ट अ रिवर इन इजिप्ट। Daniel is not a river in the Egypt. Mark 10 is telling this one. Atheism is a non-profit institution. जॉर्ज कार्लिंग, इनका एक बड़ा वो सेंटेंस से कोटेशन है। एथेइज्म इज़ अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। एथेइज्म ये है कि नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। बट इफ़ यू आर नॉट एथेइस्ट, इफ़ यू आर द रिलीजियस, तो यू हैव द लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशन मीन्स ईयर और रेगुलर इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे मतलब कि धर्मशाला, जो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, वॉट एवर इट इज़, दे ऑल द रिलीजियस प्लेसेस आर हियर इंस्टीट्यूशन कॉल्ड। तो ये जो एथेइज्म है वो ऐसा प्लेस है कि जो बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं चलता है, बिल्कुल यूजलेस है, मतलब नॉट हैविंग एनी प्रॉफिट, नो बडी इज सपोर्टिंग टू दैट वन, इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एनी वन। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई विल यूज वन सेंटेंसेस, इट इज़ माई विल, listen it properly, it is my will to write the will that what about my desires will. It is my will means my desire, okay. The second, it is my will to make the will means here the death certificate or death desire, जो हम मृत्यु पत्र लिखते हैं। what about your property, okay, it is my will to write a will what about my property, what will about my property, तो ये मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसके लिए मुझे मृत्यु पत्र लिखना है, और ये मेरी इच्छा है। तो विल का यहाँ पे 2-3 बार यूज़ हो गया, द सच वर्ड्स आर यूज देयर एंड दिस इज़ अ पन, ओके, इट इज़ शोइंग समथिंग डिफरेंट एंड हैविंग द डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड ऑल द 20 फिगर ऑफ स्पीच एंड इट्स वेरी यूजफुल टू यू इन द स्कूल लाइफ। बिफोर जो सारे बहुत आपको एक बार से नहीं समझ में आएगा, उससे 1-2 बार पढ़िए, 1-2 बार सुनिए, definitely you will understand all the figure of speeches and it's very easy. Most of the students are very afraid about the figure of speech because they think that this is a difficult task, but it is not very difficult. It's very easy if you are using one by one, two मैंने आपको पहले कहा कि if you are using 5 figure of speeches and you are practicing them regularly through your textbook, then definitely it will be easy for you, you will learn it properly. I hope you are learning. Wait for the next video. Next video is on my next grammatical topic. Best of luck to learning and thank you for watching. If you like the video, please give me the comment, like it and subscribe again. Bye, have a nice day. Good.